Namaste. I'm JVN Professor Dr. Saptang Gehlot. My discipline is political science. My department is humanities and social science. Faculty of Education Methodology. I'm from JOT Vidyapeeth University. तो आज जो टॉपिक है मेरा, मैं आपसे पिछले 2-3 सेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटन में, अनरिटन में हम उनके फीचर्स को समझ में आया, हमें समझ में आया व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे विल डिस्कस अबाउट द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। सो कम टू द पॉइंट। हमने क्या देखा, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम डिस्कस करेंगे कि वो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के। तो व्हाट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? In flexible constitution, there is no distinction between the ordinary law and the constitutional law. Both are also same in this type. The constitution may be written or mainly based on agreement. So सबसे पहले ये चीज़ आई है इसमें कहने के लिए, चूँकि इसका जो प्रोसीजर है बहुत ही फ्लैक्सिबल है, so you can say कि there is a no distinction between the ordinary law and the constitutional law. जैसे कि rigid में हम देखते हैं कि ordinary law अलग हो रहा है और constitutional law अलग हो रहा है, and both are also same. In this type of constitution may be written or mainly based on agreement. तो flexible में क्या जाता है, जो constitution है वो written भी हो सकता है या मे बी is based on agreement. यानी आप किसका देख सकते हो, अगर आप written को देखते हो तो आप देखेंगे like USA, और आप देखेंगे यूके क्या है, फ्लैक्सिबल, तो वहाँ पे क्या है आप देखेंगे देयर इज अ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स। तो यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे जहाँ पे फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि यूएस से वो कॉन्स्टिट्यूशन किसका एग्जाम्पल आ रहा है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिजिड। वेयर इज इन फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि देयर इज फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है और ये किसी कन्वेंशंस या एग्रीमेंट्स पे भी हो सकता है। It makes possible the adjustment of the constitution to be changing needs of the society. So अगर हम इस constitution को देखते हैं तो ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, ये जो स्पेशल फीचर है इसका वो ये है कि it makes possible the adjustment of the constitution by changing needs of the society. चूँकि constitution में there is a no difference between the constitutional law and the ordinary law, तो हम ये देखते हैं कि according to need हमारा constitution change होता रहता है, जबकि rigid में थोड़ा मुश्किल होता है easily कि हम constitution को change करें. So what is the quality of this constitution? कि it makes possible the adjustment of the constitution to be changing needs of the society. A flexible constitution can easily adapt the needs of the people with a change of time because of its elasticity. यानी what is the quality कि जो flexible constitution है क्या करता है, easily adapt करता है according to the needs of the people with change of time because of its elasticity. इसका मतलब ये हो गया कि अगर कई बार because of the needs of an लोगों का सोसाइटी में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ नई डिमांड्स हो रही हैं, तो फ्लैक्सिबल बहुत तरीके से जो कंट्री है वो अपने अनुसार, लोगों के अनुसार, समाज के अनुसार अपने संविधान में चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, a flexible constitution can be amended with the same case and facility with which ordinary law are amended. So what we have seen कि जो flexible constitution है can be amended with the same case and the facility with which ordinary law are amended. यानी जो आपको change करना है, उसको amend करना है constitution में, it just like with the same case and with उसी तरीके से जितने कि हम ordinary law में change करना चाहते हैं। It makes possible the adjustment of the constitution to become changing needs of the society. So what we have seen, it makes possible the adjustment of the constitution to be changing needs of the society. तो हमने क्या देखा, जो इसका मेन फीचर है, जो मेन क्वालिटी वो यही है कि it makes possible the adjustment of the constitution to be changing according to the needs of the society. And another thing is a flexible constitution can easily adapt the need of the people with a change of type because of its elasticity.
Next, so what we have seen now, a flexible constitution can easily adapt the needs of people with change of time because its elasticity, ये चीज हो गई, क्लियर हो गई. अब चूंकि आप समय के अनुसार चेंज कर रहे हो, सोसाइटी को देख रहे हो, कंट्री को देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो, सो क्या देखने को आती है चीज कि when the demands of the people are fulfilled by the constitution, there is hardly any chance of revolution. So this is a quality and this is an advantage, this is a merit of this constitution, क्योंकि because of demand of an hour, लोगों की इच्छाओं से, उनकी डिमांड से आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं. और एज ए रिजल्ट ऑफ सीन कि हमने देखा कि where the demands of the people are fulfilled by the constitution, there is hardly any chance of revolution. क्यों? क्योंकि लोगों की, सोसाइटी की डिमांड्स पूरी की जा रही है. Why? Because you see there is a elasticity. What is the elasticity? What is the things that a flexible constitution can easily adapt the need of people with change of time because of this elasticity, and which led to the there is no hardly any chance of the revolution in the country. Next, a flexible constitution is very useful for developing a country because it is a great expression of its development. See, this is the merit, you can say the another merit or the advantage of this constitution is it is useful for developing a country, and because of this it led to the great expression of its development. It does not hinder progress due to its adaptability. At the same time, it protects the basic principle of the constitution. See, चूंकि समय के अनुसार आप उस संविधान में चेंज ला रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या हो रही है कि it does not hinder progress due to its adaptability. ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, एट द सेम टाइम इट प्रोटेक्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द constitution. So this is the thing. So what you have seen कि जो flexible constitution है, it's useful for developing the country because it is a great expression of its development. It does not hinder progress due to its adaptability, and the next is at the same time it protect करता है of the basic principles of the constitution. And next, a flexible constitution is based on the sound assumption of some socio-political changes and premises that there cannot be a perfect constitution for all times to tackle the socio-political change. So what you have seen, being a flexible constitution, इसमें क्या चीज मिल रही है कि is based on the sound assumption of, इसका जो main principle आ रहा है वो है that some socio-political changes and premises that there cannot be perfect constitution for all times to tackle the socio-political changes. यानी अगर आप socio-political change सोसाइटी में होता है चेंज, तो कहीं ना कहीं वो इस कंट्री को बहुत हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज फेयर्ड बाय द कन्वेंशंस ऑफ नेशनल लाइफ. यानी जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है किसके द्वारा है, इट इज फेयर्ड बाय द कन्वेंशंस ऑफ द नेशनल लाइफ. जैसे यूके, it represents the historical continuity of the nation's life and incorporates change within itself. यानी किसी कंट्री की डिमांड से, लोगों के कन्वेंशन से, कुछ हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी जो आपका एक पॉलिटिकल कल्चर है उसको लेके भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है. A flexible constitution can claim to feel the pulse of public opinion, and it represents the mind of people. So this is another quality of this, or the advantage of this constitution, that it claim to feel the pulse of public opinion. यानी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, एक पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, लोग उसको समझते हैं, सरकार इस बात को समझ लेती है, और इट रिप्रेजेंट्स द माइंड ऑफ पीपल. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है क्लेम करता है टू फील द पल्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, एंड इट रिप्रेजेंट करता है किसको, द माइंड ऑफ द पीपल. नेक्स्ट, the British Constitution and the Canadian Constitutions are example of the flexible constitution. So what you have seen, अगर हमने इसकी जो क्वालिटी देखी because of adaptability, तो चीज क्या आ रही है सामने, जो British Constitution है
और जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ ग्लोरियस यू कैन से इट इज अ मेन एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इन कंट्रास्ट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड. जबकि इसके अगेंस्ट में हम देखेंगे तो यूएसए एक वो कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स इट कैन ओनली बी चेंज थ्रू द स्पेशल अमेंडिंग प्रोसीजर. सो व्हाट यू हैव सीन, जहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि फ्लैक्सिबल है, लोगों की इच्छाओं को समझता है, तो वहाँ कन्वेंशंस और एक सिस्टम चेंज होता रहता है. जबकि इसके अगेंस्ट में आप देखेंगे कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और विच मीन इट कैन बी चेंज. पर चेंज कैसे कर सकता है? बाय द स्पेशल अमेंडमेंटिंग प्रोसीजर. इसका जो प्रोसीजर है इतना इजी नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल law. So now come to the next thing. What are the demerits of the flexible constitution? When it come to the demerits of the flexible constitution, you can say that due to its flexible nature, the constitution keeps on changing. The constitution may be changed just to satisfy the people who are in majority ignoring the welfare of the minority. So this is the main demerit आ रही है इसकी. क्यों हो रही है? क्योंकि अडेप्टेबिलिटी तो है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नीड ये चेंज होता रहता है. अब चूंकि चेंज हो रहा है बार बार, तो ये चीज होती है कि इसमें कई बार द सिचुएशन, द कॉन्स्टिट्यूशन में बी चेंज जस्ट टू सेटिस्फाई द पीपल हु आर मेजॉरिटी एंड इग्नोरिंग द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी. यानी इसका नुकसान ये है कि जो मेजॉरिटी अपना हित देखना चाहता है, माइनॉरिटी का कोई इंटरेस्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दे दिया जाता है. तो दिस इज द मेन डिमेरिट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. वो क्या है? अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल नेचर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये चेंज होता रहता है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट मे बी चेंज टू सेटिस्फाई द पीपल हु आर इन मेजॉरिटी एंड इग्नोरिंग द वेलफेयर किसकी? ऑफ द माइनॉरिटी. यानी जो माइनॉरिटीज का जो कल्याण होता है कि उसके लिए कोई पॉलिसीज है जो उनके फेवरेट में होना, फेवरेबल होनी चाहिए, वो वहाँ पे वर्क नहीं हो पाता. It fails to provide a stable system in administration which result in the poor performance of the government. So what you have seen, it fails to provide a stable system in administration जो result करता है in the poor performance of the government. So what you have seen, ये क्या कर रहा है? ये fail कर, it because of this it fails to provide a stable government. अब stability क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके पास rigid constitution का फायदा क्या है कि वहाँ पे stability है, और यहाँ पे क्या होता है? चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ योर नीड्स. अब कई बार जो नीड्स होती हैं वो सेल्फिश भी हो सकती हैं, और ऐसे कारण यही हम देखते हैं कि कई बार इसकी जो सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है एंड विच रिजल्ट इन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. When the procedure of amendment is simple and easy, it is liable to be seriously affected by the changing popular passion. And popular passions are guided by emotions and not by reasons. अब यही चीज़ है, चूँकि जो आपका संविधान है वो क्या है? फ्लैक्सिबल है, तो वो नीड के अनुसार है. अब अडेप्टेबिलिटी मिल रही है, तो क्या हो रहा है? समय के अनुसार वो चेंज हो रहा है. अब इसमें चीज़ क्या हो रही है कि मेन चीज़ इसमें लोगों की इच्छा है, पॉपुलर पैशन है. और ये जो पॉपुलर पैशंस होते हैं, ये इच्छाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को देखा जाता है और इसमें तर्क की बात नहीं की जाती. यानी आप ये नहीं समझ पाते कि जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं वो सही है या गलत है. These decisions which are based on the emotions and it disturb the harmony and balance of the nation. तो कई बार क्या हो जाता है, ये जो decisions होते हैं ये क्या करता है? They are based on the emotions और ये disturb करते हैं किसको? The harmony and balance of the nation. इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे majority और minority है उसका balance नहीं हो पाता. जो majority है वो अपनी इच्छाओं की बात होती है, चाहे उनके लिए उनका जो interest सही है या नहीं है. तो majority अपने हितों को देख रखता है, वो ये नहीं देखता कि इससे कंट्री को फायदा हो रहा है या लोगों को हो रहा है, और अल्टीमेट इसको नुकसान होता है किसको? कंट्री को. बिकॉज वो क्या कर रहे हैं? बिकॉज of this you can say it disturb the harmony and balance of the nation.
it may divided the society and there may be a possible threat to the integration of the nation itself. So इसका जो main drawback होता है, जो setback वो ये है कि it may divided the society and there may be a possible threat to the integration of the nation. जब आप में कहीं ना कहीं अपने एक selfish interest आने लग जाएंगे, flexible हो जाएगा, उसको क्या करना है कि यानी सोसाइटी का लेके भी एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर ग्रुप है या पर्टिकुलर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चेंज कर रहे हैं, तो अल्टीमेट हार्मनी तो अनबैलेंस होगी. दूसरी चीज क्या हो जाएगी, देयर इज अ थ्रेट टू द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन इटसेल्फ. सो दिस इज अ मेन डिमेरिट ऑफ दिस. तो if you can say कि flexible constitution is not suitable for a federal system because the right of a constituent units are not guaranteed due to flexible nature of constitution. तो in nutshell हम कह सकते हैं कि इसकी जो कमियां हैं, पहला ये है कि ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, इसमें अब्यूज ऑफ पावर है और इसमें इंस्टेबिलिटी है. तो यू कैन से कि दीज आर द फ्यू डीमेरिट्स. लेकिन डीमेरिट्स के बाद भी हम कह सकते हैं कि इसकी मेरिट भी बहुत क्वालिटी है. क्यों? बिकॉज ऑफ द अडेप्टेबिलिटी इन द सिस्टम. थैंक यू, धन्यवाद.